ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ? ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਉਸਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ? ਆਸਣ ਵੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੋਂ ਬੁੱਝਦਾ? ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੂਤਰ ਤਰੀਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਦੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਤੇ ਔਦੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਤੁਝ ਕੈ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਤੁਝ ਕਾ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਮੁਰਗਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੈਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੇ ਏਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ। ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਨ ਹੈ ਚੌਥੀ, ਉੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਦਾਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਾ ਕਿਸਨੇ ਹੈ? ਸੁਰਤੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਛੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਲਈ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਨਚੇਲਾ।
अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। भी जुगां तो गुर ही गोपाल है। अकथ दी कथा जदों सुन के फिर मन निराला हो जाता है, फिर सानू वो परमेश्वर दा ज्ञान होता है। सवाल की कीता सी, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। कवन कथा ले रहो निराले, नानक बोले गुर गोपाले। इस कथा का दे विचार, भवजल शब्द लंघावन हार। वो शब्द वो तो दसो सानू, विचार दो कि भव सागर नू पार करना। ते फिर महाराज ने ये उत्तर दिता सी, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। अकथ कथा ले रहो निराले, नानक जुग जुग। अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अगन निवारी। भी एक ही शब्द की विचार है, एक ही शब्द की कथा है। वो की करती, साडे मन की हौमे नू खत्म कर देती है। मन का आकार निराकार च समा जाता है। इस तरीके नाल सानू समझाया है। ये शब्द दे विच सतगुर समझाउंदे ने, भवजल बिन शब्द है क्यों तरिया, नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुबदा डुब डुब मरिया। कहते दुबदा दे विच, दुचित्ती दे विच हौमे करके जीव इस भव सागर दे विच डुबदा है, मर जाता है। क्योंकि शब्द तो बिना इस भव सागर नू पार नहीं कीता जांदा। ते दसदे ने अगे, कहते गुर कै शब्द तरे मुन केते। कहते गुर दे शब्द द्वारा कितने तरे ने, इंद्रादिक ब्रह्माद तरे। इंद्रादिक, इंद्रादिक की है, देवते। जेड़े देवते अवस्था दे विच, देवता इंद्रे नहीं कोई कि किते बैठा है, साडे मन की एक अवस्था है। ब्रह्मादिक, इंद्रादिक, क्योंकि जे एक होवे इंद्रादिक दा भी इंद्र वर्गे ब्रह्मा वर्गे किन्ने ही तर गए। क्योंकि परमेश्वर दे इस संसार दे विच आपां किन्ने शरीर ने, सारियां शरीरां दे विच ही इन्हां दा वासा है। जिन्हों आप पढ़ते भी हाँ कि परमेश्वर दी जिहड़ा इस सृष्टि है, इहदे विच किन्ने क इंद्र ने, किन्ने क ब्रह्मा ने, किन्ने क महेश ने। अकाल पुरख की दे मोह, कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रव सस करोड़ जलेस। बिक नहीं है, करोड़ा ही ने। करोड़ा शिव जी ने, करोड़ा विष्णु ने, करोड़ा ब्रह्मा ने, करोड़ा इंद्र ने, करोड़ा सूरज ने, करोड़ा ही चंद्रमा ने। कोई बारी नहीं, क्योंकि सारे सारे दे शरीर दे विच इंद्र वसदा है। ये जिहड़ा आपां इत्थे गाउंदे हां, ये साडे शरीर दा ही नक्शा है, अपने 10वें द्वार दा ही ज्ञान है। इस दे विच जिथे बैठे सारे देवी देवते परमेश्वर नू गाउंदे ने। जिन्हों आपां पढ़दे हां कि ओह दर ते किन्ने क गाउंदे ने परमेश्वर नू। वो दर जिहड़ा प्रभु दा दर है, जिथों सानू सारियां नू बैठा संभालदा है। सो दर केहा सो कर केहा, जित वै सर्ब संभाले। बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते तेरे बावन हारे। केते तेरे राग परिस्यो कही है, केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे। उस दर ते बैठा धर्मराज गाउंदा है। पौन पानी वसंतर गाउंदे ने, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जान, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहण तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां धरनले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। उस दर ते बैठे सारे गाउंदे ने, खंड मंडल ब्रह्मंड गाउंदे ने। पर इन्ना गाउण दे बावजूद भी परमेश्वर नू कौन पाउंदा है? इन्ने गाउंदे ने पर परमेश्वर नू नहीं पाउंदे, क्योंकि दर ते बैठे गाउंदे ने, समा के नहीं गाउंदे। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਥ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ
ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਭਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਤ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਤੇ ਇੰਦਰਾਦਿਕ, ਇਹ ਸਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ। ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਏਦਾਂ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜੀਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜੀਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਪੈੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਪਸੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦੇਵਾ, ਗੁਰ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਦੇਵਾ ਹੈ। देव कोई गुर जैसा नाही को देव, क्योंकि अलख है, अपेव है। त्रिभवन सोजी गुर की सेवा। त्रिभवन की ने आ इधर का ज्ञान है सारा ही, ये त्रै भवना का ज्ञान है। ए दर तो पिछे सारा ही जिहड़ा ज्ञान है, इहनूं कहंदे त्रै भवना का ज्ञान। ਇਹ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪਦ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਖ ਹੈ, ਅਪੇਵ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੀ ਗੁਰਦਾਤ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਗੁਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ, ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ।
पर साडी हालत की हुई है। महाराज समझाउंदे ने कि साडा मन इस संसार च आके सौ गया है। भगत बाबा रविदास जी इस नूं बड़ा एक सोहणे तरीके नाल पेश करते ने भी मन की साडे दी जिहड़ी अज हालत है, जिहड़ा मन दौड़िया फिरदा संसारी वस्तां नूं, किड्डा ही जीव, कोई किड्डा अमीर है, रजदा नहीं है। मन होर होर मंगदा है, मन नूं होर भुख लगी है, भिखारी बनिया है बड़े ते बड़े। क्यों मंगदा है? क्योंकि मन ये भुल गया भी मैं कौन हाँ। सुता पिया है, सुपना देखदा है। बाबा रविदास जी समझाउंदे ने, कहंदे उदाहरण दिंदे ने एक राजे दी कि एक राजा सी, वो राजा की सिंघासन ते बैठा बैठा उन्होंने नींद आ गई। नींद आई ते उन्होंने सुपना आ गया। सुपने दे विच की देखदा, वो मंगता बनिया फिरदा, उहदा राज खुस गया ते भिखारी बनिया फिरदा है। वही हालत कहते साडी हो गई, क्योंकि साडा मन इस संसार च आके सौ गया ते यह सुपना देख रहा है। क्योंकि इस संसार नूं गुरबाणी च सुपना क्या है। सुपने दे विच मन मंगता बनिया होया है। बाबा रविदास जी समझाउंदे ने, कहंदे नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अशत राज विशरत दुख पाया। कहंदे राज विसर गया, दुख प्राप्त होया उसनूं। सो गत भई हमारी, वो गत साडी हो गई। भरम दे विच पै गए। माद वेख्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिया होए न तैसा। कहंदे भरम ही ऐसा जिहा जिहा आपां मनदे, होया जा परमेश्वर नहीं है। जो वो है वो आपां कदे मनदे नहीं हैं, क्योंकि आपां सारे ही परमेश्वर नूं लभदे हां कि असीं परमेश्वर नूं मिलण दे वास्ते आए हां। पर सतगुरु जी कहते कि परमेश्वर ऐसी कोई जगह ही नहीं जिथे वो नहीं वसदा। जरे जरे च है, कण कण दे विच है। क्योंकि आपां देखदे किते आकार दे विच होएगा, किते शरीर दे विच होएगा, किते दफ्तर बनाया बैठा होएगा। ते महाराज दसदे भी वो हर थां ते है। ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ वाला है। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ एक है, दूसरा नाही कोय, नानक तिस बलिहारना, जल थल महियल सोए। वो जल विच भी है, वो थल विच भी है, वो धरती तो लैके आकाश तक इको रूप दे विच है। आकाश की है कि जिहदा कोई अंत नहीं है, जिसनूं साइंसदान आकाश गंगा कहंदे ने, जिसनूं होर नाम लेंदे ने इसदा गैलेक्सी। पता नहीं किन्नियां क अगे ते अगे गैलेक्सियां ने, करोड़ां ब्रह्मांड ने, लेकिन वो फिर सतगुरां ने सानू समझाया है कि वो परमेश्वर जिहड़ा है उसनूं आपां भुल के जिहड़ा साडा मन है ये भिखारी बन गया। लेकिन आपां सारे ही, साडा सारियां दा मन है राजा। पर सानू समझावे कौन कि असीं राजे हैं, क्योंकि जब तक असीं अपने आप नूं जान नहीं लैंदे सानू पता नहीं लगता कि साडा मन राजा है। मन राजा मन मन ते मानिया। पर जिन्हां ने अपने मन नूं जान लिया, वो मन दी जिन्हें सुन के मन लई, वो मन भी फिर राजा बन जाता है। उसदी गत नहीं कही जा सकती। उन्हों की प्राप्त हुंदा है? नाम। जिहदे सिर दे च नाम वस गया उन्होंने गुरबाणी दे विच राजा ही कहा है। इस करके नाम किवें वसदा है? जिन्हां ने सुन के मन लिया। 4 पौड़ियां सुनन दियां ने भगतां दी ते 4 पौड़ियां मनण दियां ने। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे
पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बै करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को। जे किसी मन ने जान लिया, क्योंकि जे नाम नू जान लिया, कदों नाम नू जान लिया, जदों आपे नू जान लिया। तो उस मन की सुन के जिन्हें मन लिया वो मन भी फिर राजा बन जाता है। मन राजा मन मन ते मानिया मनसा मन है समाई। कहते ऐदा जदी मन की मनसा सी वो समा गई। मन जोगी मन बिनस वियोगी मन समझै गुण गाई। कहते मन जोगी बन गया कदों, जदों इसने अपने अस्थूल रूप नू खत्म कर दिता। इहदा स्थूल रूप बिनस गया ते प्रकाश रूप प्रगट हो गया। फिर मन नू समझ आ गई, मन समझै गुण गाई। कहते मन नू फिर समझ आ गई, फिर मन परमेश्वर दे गुण गाउंदा है। गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा। पर कहते ऐसे जीव जिन्हां ने मन नू मारिया है गुर दे ज्ञान द्वारा ते फिर शब्द दी विचार कीती, कहते ऐसे विरले ने संसार दे विच। नानक साहब भरपुर लीना साच शब्द निस्तारा। कहते वो विरले ने पर उन्हां कोल सच्चा शब्द है। उस द्वारा जदों निस्तारा हो जाता है फिर असीं परमेश्वर नू हर थां भरपूर देखते हाँ। जदों मन उस दे विच लीन हो जाता है फिर इस संसार दे विच दूजा कोई नहीं है, क्योंकि उस दे दो रूप ने। जिहड़ा ये दृष्टमान रूप है इसनूं दस्सिया कि उसकी परछाई है, छाया है। ये संसार उस परमेश्वर की छाया है। ये झूठ है। जिवें अपना एक शरीर है इसकी एक छाया हुंदी है। छाया की है कि छाया कदे भी इक्को जी नहीं रहिंदी, बदलती रहती है, बददी घटती है। फर्ज करो मैं ये लाइट है इसके इधर खड़ा हाँ, इधर अगे मेरी छाया बहुत दूर तक चले जाएगी। जिन्ना मैं इस तो दूर जाई जाऊंगा उन्नी मेरी छाया होर दूर तक लम्मी हो जाएगी। अगर मैं इसके थल्ले आ जाऊंगा मेरी ही छाया मेरे विच समा जाएगी। इदा ही सवेरे सूरज चढ़ता है, जदों सूरज चढ़ता है पश्चिम वाले पासे साडी कितनी लम्मी छाया हुंदी है। जदों सूरज सिर ते आ जाता है साडी परछाई साडे च ही समाउंदी है। फिर पश्चिम वाले पासे सूरज आंदा, पूर्व वाले पासे साडी छाई चले जाती है, परछाई चले जाती है। इदा संसार है, बददा घटदा है। जूना उन्नियां ने, कदे किसी जूनी च वाधा हुंदा, किसी जूनी च घाटा हुंदा है, क्योंकि 84 लाख जूनी सदा उन्नियों रहनी है, वधदी घटदी नहीं। 184 मेदनी बदे ना घटा होता है। हाँ, जूना दे विच कदे किसी जून दे विच वाधा हो गया, किसी जून दे विच घाटा हो गया। किवें आपां देखदे हाँ पशु अपने पंछी किन्ने कर चुके ने, इदां ही कुछ जिहड़ी जूनी है मनुख किन्ना वधिया है, इदां वाधा घाटा हुंदा है। इस करके सानू समझाया है कि इदां उस परमेश्वर दा सानू ज्ञान हुंदा है। सतगुरु जी समझाउंदे ने अगे, सो जन ऐसा मैं मन पावे। कहते कोई ऐसा जन होवे वो मेरे मन नू पाउंदा है। की करे? कहते आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे। कहते आपे नू मार के अपरंपर परमेश्वर दे विच रत्या होवे ते फिर गुर दी कार नू कमाउंदा होवे। ऐसा जन होवे कोई, कहते वो मेरे मन नू पाउंदा है। की करदा? कहते गुर कै संग रहे दिन राती। वो सदा ही गुर दे संग रहिंदा है दिन रात। गुर की है जुगत ज्ञान, गुर दा शब्द। उस गुर नू सदा नाल रखदा है ते गुर उन्हां दे भी नाल रहिंदा है जिन्हां नू आपां पढ़दे भी हाँ कि जिन्हां दा मन निर्मल हो जाता है। दो तरह के जीव सानू समझाया है कि एक वो जीव ने जिहड़े बाहरों निर्मल हो जाते, अंदरों मैले ने। वो अपने जन्म नू जुए च हार जाते, जिन्हों आपां पढ़दे हाँ, जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया।
ਉਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਬਲਿਆਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਨਜਾਰੇ ਭਲੇ ਨੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਸਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗ 'ਚ ਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਸ, ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, शकल काल का किया तमाशा। एक काल का तमाशा है शकल जिहड़ी है। ये सानू ये परमेश्वर ने ऐसी एक रचना रची है कि कोई भी एक दूजे वर्गा पैदा नहीं किया। घर दे विच भी किसी दी शकल एक दूजे नाल नहीं मिलती, कोई ना कोई अंतर जरूर होएगा। मेरा समझाउंदे ने, कहंदे मेरे प्रभु साचे एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा ओ पाया। आपे फर्क करे वेख विकसै। कहंदे आप ही ये फर्क पाया, आप ही देख रहा है। सब रस दे ही माहा है, बाजे पौन ते आप बजाए, शिव शक्ति देही मैं पाए, गुर प्रसादी उल्टी होवे। इसे नूं गुर दे ज्ञान द्वारा उल्ट जाना है। इसने जदों उल्टा हो गया, उत्थे साडा सारियां दा एक रूप है। गुर प्रसादी उल्टी होवे, ज्ञान रतन शब्द ताहा है। जदों ये उल्ट गई मत, उत्ते साडा प्रकाश रूप प्रगट हो जाता है। वो सारियां दा एक है। जिन्ना भी संसार दे विच, चाहे कोई राजा है, कोई रंक है, कोई भी है, सारियां दा एक रूप है। वो भी बहुत सुंदर रूप है। इन्हों पढ़ते हैं, एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कही। पर वो गुर दे ज्ञान द्वारा मत उल्टती है साडी, उत्ते फिर सानू अपना प्रकाश रूप प्रगट हो जाता। ये रूप साडा गुप्त हो जाता है। इसनू देही भी क्या कहते, देही गुप्त विदेही दिसै। फिर वो देह जिहड़ी साडा रूप है, प्रकाश रूप प्रगट हो जाता, ये गुप्त हो जाता, ये लुक जाता है, इसके उत्ते प्रकाश प्रगट हो जाता है। वो साडा सारियां दा एक रूप है। इस करके सतगुरु समझाउंदे ने, जिन्हां ने उसनू पहचान लिया अपने रूप नू, उही फिर सानू उस दे बारे दसदे ने। अबर न जान शब्द पछाण, अंतर जान पछाता। अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेश हो। कहते जो अंतर बाहर प्रगट हो जाता है, वो परमेश्वर
फिर ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਬੇਪੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੋ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸੱਚ ਵੇਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਸ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਬਾ ਮਿਥਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ 'ਚ ਰਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਮਿਲ ਲਾਹਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਖਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਹਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਮਨ? ਜੋਤ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੱਜੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਇਹ ਸੱਜਾ ਨੇਤਰ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਨੇਤਰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੱਕ ਆ ਗਿਆ।
ये हौमे है, ये स्थूल हो गया क्योंकि ये नक जिहड़ा अपना है ये प्रकाश है, लेकिन हुण अस्थूल हो गया क्योंकि इन्हां दोनां दे विचाले आ गया, इन्हां नूं एक नहीं होण दिंदा। ते सानूं समझाया है तरीका भी आपां पहलां तां अपने आप नूं देखना है भी साडा ध्यान किस पासे है। सिद्धगोष्ठ की बाणी जोगियां दे नाल जदों विचार हुंदी गुरु नानक साहब जी दी, ते गुरु नानक साहब जी महाराज समझाउंदे ने कहंदे कवन बुद्ध कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया। भी किसी दे मुख ते चंद्रमा, चंद्रमा की है इस पासे, किसी का ध्यान खब्बे होएगा उहदे पासे चंद्रमा दी परछाई है, छाई है, ठंडक है, चिंता है। ते किसी दे मुख ते सूरज तपदा है, किसी का ध्यान सज्जे होएगा उहदे मुख ते सूरज तपदा है, किसी दे मुख ते चंद्रमा दी ठंडक है। चंद्रमा दा क्योंकि चंद्रमा दी अपनी कोई रोशनी नहीं है, इस करके अंधेरा भी है। कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोत नित रहे। कहते इस मुख नूं फिर काल जोंदा है, तीन अवस्था ते जोंदा है, सतो गुण तमो गुण ते रजो गुण, तीन ही काल दे ने। राजगुण तम गुण सतगुण कहिए ए तेरी सब माया। कवन जोत जो काल संघारा, राजे कहते केड़ा जोत है जेड़ा इस नूं संघारदा है। कवन मुख काल जोत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे। कहते केड़ी बुद्धि है जिन्हां गुरमुख दी पत रहिंदी, गुरमुख नूं ये लुट नहीं सकते, गुरमुख नूं ये भरम दे विच नहीं पा सकते, गुरमुख नूं काल जो नहीं सकता। कवन जोत जो काल संघारै, बोले बाणी नानक विचारे। कहते केड़ा जोधा है जिहड़ा इस काल नूं मार लैंदा है, संघार लैंदा है। तो फिर सतगुरु दसदे ने कहते शब्द भाखत सस जोत अपारा। भी वो शब्द भाखणगे, शब्द का ज्ञान देणगे, उहदे नाल की होएगा कि जिहड़ी सूरज चंद्रमा की जोत है अपार हो जाएगी। क्यों होएगी? क्योंकि सूरज चंद्रमा समा जाएगा। सस घर सूर वसै मिटै अंधेरा। अंधेरा क्यों है कि जिवें हुण आपां देखदे हां, हुण जिहड़े दिन चलदे ने, रातां ने, तिथियां ने चलदियां, इस नूं आपां सुधी कहंदे हां। हुण की है कि रोज थोड़ा थोड़ा चंद्रमा ने बड़ा होना है, क्योंकि चंद्रमा वही है, जिन्नी कि चंद्रमा ते सूरज की रोशनी पई जानी उन्ना कि चंद्रमा ने चमकना है, क्योंकि उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आमो सामने हो जाते सूरज ते चंद्रमा, आमो सामने हो जाते, पूरे सूरज की रोशनी जिहड़ी पूरे चंद्रमा ते पैंदी है, ते पूरा चंद्रमा चमकदा है। ते चंद्रमा चमकदा है ते रात नूं अंधेरे दे विच चंद्रमा चानन करदा है, अंधेरा दूर कर दिंदा है। इदां ही जदों साडा ये सूरज जिहड़ा है ये चंद्रमा वाले पासे आ जांदा है ते इहदी रोशनी इहदे ते पैनी शुरू हो जांदी ते अंधेरा खत्म होता है, क्योंकि दोनों एक दिशा च ने। इसने इधर आउणा है, इहनूं कहंदे सूरज नूं चंद्रमा, इहनूं महाराज कहंदे हैं पश्चिम वाले पासे सूरज ने ले जाना। आप देखते हाँ पश्चिम वाले पासे सूरज हुंदा ते चंद्रमा पूर्व तो चलदा चढ़दा है ते सारी रात चंद्रमा रहिंदा है, क्योंकि उच्चे ने बहुत, उहदियां किरणां पैंदियां रहिंदियां ने ते उहनूं कई बारी हुंदा है कि कोई होर ग्रह विच आ जांदा है, फिर सूरज दी किरणां नूं रोक लैंदा, चंद्रमा चमकदा नहीं, जिन्हों आपां कह दिंदे कि चंद्रमा नूं ग्रहण लग गया, कोई होर ग्रह विच आ जांदा है तो सूरज दी किरणां नूं चंद्रमा तक पहुंचण तो रोक लैंदा है। इस तरीके दे नाल सानूं समझाया है। इदां ही अपना ये सूरज है जिहड़ा चंद्रमा वाले पासे चले जांदा, क्योंकि ये रस्ता असीं बंद कर देना। ये पासे दा जिहड़ा ध्यान है इसनूं गुरबाणी च असुर नदी कहा है। मतलब कहते ये रस्ता बंद कर देना, इस नूं सूरज नूं कित्थे ले जाना? पश्चिम वाले पासे। असुर नदी का बंदा मूल पश्चिम फेर
चढ़ाइए सूर। अजर जरै तो निजर चरै, जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे। इदा फिर उस मालिक चानण हो जाता। जो चानण हो गया तो सानू मालिक दिसना शुरू हो जाता है। फिर उस दे नाल मन की विचार भी होती है, गोष्ट करता है, सिक्ख्या लैंदा है, ज्ञान लैंदा। भगतां ने जो ज्ञान दिता, किस दा ज्ञान है? उस परमेश्वर का है। पर होया कदों? जदों उन्होंने सूरज नूं पश्चिम वाले पासे ले गए, अज्ञानता दूर हुई, चानण हो गया। इस तरीके नाल सानू समझाया है कि हुण आपां भी की करना है कि आपां अपनी दृष्टि नूं इस पासे लैके जाना है। जदों इस पासे चले जांदा असीं एक दृष्ट हो जांदे, रस्ता बंद हो जांदा, इस रस्ते नूं आपां चलदे हां ते साडे घर दे विच चानण हो जांदा है। इस दे वास्ते आपां करना की है? आपां पहलां ये देखांगे कि साडे मुख ते किस दी छाया है, कि साडे मुख ते सूरज तपदा है, कि साडे मुख ते चंद्रमा दी ठंडक है, अंधेरा है, जां असीं सतो गुण ते फसे हुए हाँ। वो आपां पहलां देखना है कि है किवें देखांगे। आपां अपनी दृष्टि नूं इस पॉइंट ते आपां फोकस करांगे। इत्थे अपनी दृष्टि नूं इदां देखांगे, ये देखांगे कि सानू अपना नक दिसदा जां नहीं दिसदा। जे नक दिसदा है आपां दो दृष्टि च हाँ। जदों असीं एक दृष्ट हो जांदे हाँ, सानू अपना नक नहीं दिसेगा। जे आपां नूं नक दिसदा है, आपां दो दृष्टि च हाँ, पर आपां ये देखना भी किस पासे तो दिसदा। कई जीवां नूं अपना नक सज्जे पासियों दिसदा, इक्को पासे दिसदा है। उन्हां दा जिहड़ा ध्यान है सज्जे है, उन्हां दे मुख ते सूरज तपदा है, उन्हां दे अंदर बैर विरोध बड़ा हुंदा है, विचारां चलदियां, गुस्सा क्रोध बड़ी छेती आ जांदा है। ते किसे दा ध्यान ज्यादा खब्बे हुंदा, उसनूं अपना नक खब्बे पासे दिसदा है, पर उसके मन दे विच आशावां, तृष्णावां, चिंतावां, डर बनिया रहता है, क्योंकि इस पासे ठंडक है। ते कई जीवां नूं विचाले ध्यान हुंदा है, उन्हां नूं नक दोनों पासे दिसदा है। वो सतोगुण है। इधर तमोगुण है, इधर रजोगुण है, इत्थे सतोगुण है। इत्थे आपां ये कह सकदे कि ना ज्यादा गर्मी ते ना ज्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी हाले ज्ञान नहीं है, फिर भी कोई ना कोई उसनूं डर है, मुक्त नहीं है। ते जदों एक दृष्ट हो जांदे उदों नक नजर नहीं आउंदा, उत्थे साडे मन नूं देवता गया है। ते जदों फिर असीं ध्याउणा शुरू करदे गुर दे ज्ञान द्वारा, फिर सानू अपना नक जिहड़ा है प्रकाश हो जांदा, साडी जोत प्रगट हो जांदी है। सानू अपना नक जिहड़ा है शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसनों आपां पहचान के साडा भरम दूर हुंदा कि कोई परमेश्वर जिहड़ा है इत्थे सानू किवें दिसना शुरू हो जाता है। जिवें आपां चंद चाननी रात देखते हाँ, जदों चंद चाननी रात हुंदी है, वो जिवें सानू आपां देखते हाँ, बहुत वधिया इत्थे ध्यान टिकदा है इस दे विच, इदां सानू हर समय उवें दिसना शुरू हो जाता है। जिन्होंने महाराज समझाउंदे ने, निस दामन ज्यों चमक चंदैन देखै, अहनिस जोत निरंतर पेखै। कहते इदां ही असीं उस परमेश्वर की जोत नूं निरंतर देख सकते, जिवें जदों चंद चाननी रात हुंदी सानू इत्थे प्रकाश दिसदा है। ऐसा प्रकाश है परमेश्वर का। सोच करके जब तक आपे दी पहचान नहीं, सानू दी पहचान नहीं हुंदी। उस वास्ते आपां की करांगे, जे कोई नवां जीव उसने समझना है, क्योंकि करन तो बाद सानू इसका पता चलेगा। आपां की करांगे, पहला इस पॉइंट ते देखांगे, इदां ये देखांगे कि नक दिसदा जां नहीं दिसदा, जे दिसदा किस पासों दिसदा, सज्जे खब्बे जां दोनों पासे। इन्हां देखण तो बाद इत्थों मैं आप जी नूं आवाज देवांगा कि ध्यान सामने लैके आओ। इत्थों आपां की करांगे, सामने देखांगे। इत्थों फिर मैं आप जी नूं आवाज देवांगा कि ध्यान मस्तक दे सामने लै जाओ। आपां की करांगे, पलकां उत्ते चुक दांगे।
इस पासे नूं साडा ध्यान चलेगा, इधर नूं। फिर जदों कवांगा सामने, फिर आपां सामने लै आवांगे। फिर जदों कवांगा नक ते सम करके देखो, फिर इस पॉइंट ते देखना है। फिर आपां देखांगे जे पहला नक दिसदा है किसी जीव नूं, चाहे सज्जे है खब्बे है जां दोनों पासे तो, जदों वापस आके देखांगे फिर आपां देखना हुंदा है सानू नक नज़र नहीं आएगा। क्योंकि सानू कौन, साडे मस्तक ते सारियां दे परमेश्वर दा वासा है। जदों आपां उस दी शरण जावांगे वो सानू दो तो एक कर देगा, दो दृष्टि नूं एक कर देगा। ते असीं वापस आके देखांगे सानू अपना नक नज़र नहीं आएगा। इस पासे एक हल्की परछाई जी सानू नज़र आ सकदी पहला, इस पासे खब्बे। फिर आपां जदों अभ्यास करांगे उहदे नाल साडी इस पासे जोत प्रगट हो जाती, सानू इस पासे तो अपना नक ट्रांसपेरेंट दिसना शुरू हो जाता। सानू इदां लगदा जिवें साडा जिहड़ा नक है शीशे दा है, क्रिस्टल की तरह चमकना शुरू हो जाता है। उसनूं पहचान के इत्थे आपां देखांगे सारे ही सानू उसे चमक सारे पासे अनुभव होनी शुरू होती है। वो किहड़ा रूप है जिन्हों आपां पढ़दे हां आद सच, वो प्रकाश सानू दिसना शुरू हो जाता है। सो आओ सारे करके देखिए। आओ अपनी दृष्टि नूं नक ते फोकस करके अपने आप नूं देखिए कि साडी मन की की अवस्था है, असी किस पासे साडा ध्यान है, सज्जे है खब्बे है जां दोनों पासे तो नक दिसदा विचाले है, जां असी नक नहीं दिसदा। क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे ने जिहड़े एक दृष्टि ही हुंदे ने, उन्हां नूं ज्ञान नहीं हुंदा कि असी एक दृष्ट हाँ, उन्हां नूं नक नज़र नहीं आउंदा। सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखिए। मस्तक दे सामने लै जाओ, पलकां उत्ते चुकाओ। फिर सामने लेके आइए, सामने देखिए। फिर नक ते सम करके देखिए। और देखना है जे कोई नवा जीव किसी नक दिसदा सी पहला कि हुण दिसदा है जां हट गया। क्योंकि जदों एक दृष्ट हो गए सन नक नहीं नजर आएगा अपना। ध्यान नीचे लै जाइए। नीचे जो अपना कपड़ा विछया, थले फर्श विछे ने, गद्दे विछे ने, इस तो थोड़ा ऊपर आपां देखने की कोशिश करांगे। कोई एक बिंदु नहीं देखना, गद्दे ते खुला देखना। आपां थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करांगे।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹਲਚਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और फिर नक ते सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। नीचे बिल्कुल रिलैक्स देखना, जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आप गद्दे तो थोड़ा जा ऊपर देखने की कोशिश करांगे। इत्थे ही आपां नूं प्रकाश अनुभव होएगा।
आओ फिर दृष्टि सम करके अपने आप को देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके दे नाल सानू समझाया है कि जदों आपां एक दृष्ट हो के उसनू नेड़े देखते रहांगे, जदों आपां नक ते लाउंदे हां, इत्थे अपने आप नू देखण दा है कि सानू अपने मन दा ज्ञान होएगा। जदों असीं नीचे ध्यान ले जांगे, इत्थे सानू प्रकाश अनुभव होएगा, जिस दे विच साडा ध्यान जुड़ेगा ते वो जिहड़ा प्रकाश दा रंग है वो साडे मुख ते चढ़ना शुरू होएगा। सब तो पहला सानू अपना नक ट्रांसपेरेंट दिसना शुरू हो जाएगा। खब्बे पासे सानू ये लगेगा कि इसके आर पार नजर आउंदे, एक शीशे दा बन जाएगा। फिर ज्यों ज्यों आपां ते आउंदे जावांगे, हौली हौली सानू अपना मुख ही दा अनुभव होएगा कि साडा मुख शीशे दा है, आरसी है। साडा रूप शीशे की तरह पैदा हो जाए, प्रगट हो जाएगा। हमारे समझाउंदे ने ए मन आरसी को गुरमुख देख। इदा फिर देखांगे अपने आप नू, जदों मन की पहचान हो गई कि मन साडा प्रकाश रूप है, शीशे दी न्याई है, ते फिर सानू इत्थे सारे ही कोई शीशे की तरह चमक सानू इदा अनुभव होगा कि असीं शीश महल दे विच तुरे फिरदे हां। सारा संसार ही उस परमेश्वर दे विच तुरिया फिरदा है, सारे पासे वो आपां उस दे विच। उसनूं महाराज समझाउंदे ने, कहंदे सूखम मैं जाना अस्थूल। सूखम दे विच आपां अस्थूल नूं देखांगे। हुण आपां सिर्फ अस्थूल नूं देखदे हां, सूखम नूं नहीं देखिया। फिर जदों असीं सूखम दे विच अस्थूल नूं देखांगे, फिर सानू वेद शास्त्रां दे विच सारा ज्ञान हो जाता है। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जाना अस्थूल। फिर उस अवस्था च साडे मन नू गुरबाणी समझाया है कि यह पंडित बन गया है। पंडित हुंदा ज्ञानवान। सो पंडित जो मन प्रबोधा, राम नाम आत्म मैं सोधा, राम नाम सार रस पीवै। उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हिरदा बसावै। सो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जाने अस्थूल। चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। इस तरीके दे नाल सानू समझाया है कि ये नहीं कोई आप सारे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ज्ञान हो सकता है, क्योंकि इत्थे कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। इत्थे ध्यान मार्ग है। जिहड़ा ध्याएगा उसनूं परम गति की प्राप्ति हुंदी है, चाहे कोई पढ़िया चाहे कोई अनपढ़ है। जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत। क्योंकि परमेश्वर नूं कोई पढ़े लिखे नहीं बहुते मिले, वो जी मिले ने जिहड़े भोले भाले सी, जिन्हें अपनी मत नूं वरत छड्डिया। क्योंकि मत ही साडी रुकावट है। जिन मार समझाउंदे ने, मन की मत त्यागो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाई रे। कि अपने मन की मत छड़ दईए, हुक्म नूं बुझ लीए, सुख प्राप्त हुंदा है। क्योंकि अपने लिया नहीं मिलता। एक हुक्म है, एक परमेश्वर का नियम है। जे उस नियम नूं मन्नांगे, हुक्म नूं मन लवांगे, रजा च आ जाएंगे, तो उसनूं आपां देख लांगे जिहड़ा भरम की दीवार हौमे की पाल है टुट जाएगी। किव सचियारा होई है, किव हौमे टुटै, कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। सो इन्नी क विचार करते हैं, बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन। जे किसी नूं नहीं पता लग्या कुछ, आपां फिर पुछ सकते हाँ, क्योंकि
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। आगे क्या जाना नहीं, मैं भूला तू समझाए। नीचे ਆਪਾਂ नहीं जानते, ਆਪਾਂ कहना भी मैनू समझा, मैं अगे पता नहीं, मैं भुलिया हाँ, मैनू रस्ता। जिवें ਆਪਾਂ संसार च देखते हाँ, कोई रस्ता भुल जाइए, किसी ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ फलाने ਥਾਂ जाना है। इदां ही ये रस्ता जो भुले हाँ, इस ते ਆਪਾਂ पुछ के पहुँचना हुंदा है, ताकि ਆਪਾਂ जिस मकसद के वास्ते सानू ये देही मिली है, ते जिस मकसद के वास्ते गुरु साहिबाना ने आके गुरबाणी नू दी रचना की है, सानू सतगुरां दी बाणी 1430 अंग दे विच सानू लिख के दिती है, उसनू आपां समझ के कमा के अपने जीवन का लाहा कढ सकीए। फिर ही उन्हां दे मनाए प्रकाश दिहाड़े साडे वास्ते लाहेवंद हन। सो आओ इन्नी क विचार करदिआं होइआं भुल्लां चुक्कां दी क्षमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।